বলছে মাছ খাওয়া যাবে না, মাংস খাওয়া যাবে না, ডিম খাওয়া যাবে না। তো কে আমার মাথা খাবে না আপনার মাথা খাবে বলুন তো? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতির সবচেয়ে বড় হাতিয়ার কি জানেন তো? উত্তরটা খুব সহজ, মিথ্যা আর অপপ্রচার। গুজব ছড়িয়ে মানুষকে অকারণে আতঙ্কিত করে, মানুষকে বিভ্রান্ত করে কিভাবে নিজের কাজ হাসিল করতে হয় সেজন্য যে কোনো দিন নোবেল প্রাইজ পেতে পারেন মাননীয়া। রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই তিনি মানুষকে আবেগ দিয়ে ভুল বুঝিয়ে আসছেন। আর এবার 2026-এর নির্বাচনে তার মিথ্যাচারের রাজনীতির এক নতুন হাতিয়ার হলো বাঙালির পাতের মাছ মাংস। একের পর এক সভায় মমতা দাবি করছেন বিজেপি ক্ষমতায় এলে নাকি বাঙালির পাত থেকে মাছ মাংস কেড়ে নেবে, যা আসলে বাঙালি হিন্দুকে সামনে রেখে তার দুধেল গায়ে ভোট ব্যাংক বাঁচানোর এক ব্যর্থ প্রচেষ্টা। বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মমতার সেই মিথ্যা বেলুন ফাটিয়ে দিলেন, বুঝিয়ে দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কত বড় মিথ্যাবাদী। প্রশ্ন তুললেন কেন 15 বছরেও মাছ উৎপাদনে বাংলার স্বনির্ভর হলো না, কেন আজও অন্ধ্রপ্রদেশ বা বিহারের মাছের ওপর আমাদের ভরসা করতে হয়। এদিনের সভা থেকে মাননীয়াকে সরাসরি এই প্রশ্ন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। নরেন্দ্র মোদীর প্রশ্নের জবাব আছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। আগে শুনে নিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক কী বলে হিন্দু বাঙালিকে বোকা বানাতে চাইছেন। ওদের রাজ্যে মাছ বন্ধ, মাংস বন্ধ, ডিম বন্ধ। বাংলার লোকেরা নদীমাতৃকার দেশ, মাছে ভাতে থাকে, একটু মাছের ঝোল ভাত খায়, কখনো কখনো একটু মাংস ভাত খায়, কখনো বাচ্চাদের ডিম সেদ্ধ খাওয়ায়, মায়েরা গর্ভবতী মায়েরা খান। বলছে মাছ খাওয়া যাবে না, মাংস খাওয়া যাবে না, ডিম খাওয়া যাবে না। তো কে আমার মাথা খাবে না আপনার মাথা খাবে বলুন তো? রাজ্যের অন্যতম মৎস্যজীবী প্রধান জেলা পূর্ব মেদিনীপুরে দাঁড়িয়ে দিনের পর দিন মমতার এই মিথ্যাচারের মুখের ওপর জবাব দিলেন মোদী, যাকে বলে স্যাকরার টুকটাক কামারের একঘা। তমলুকে এক নির্বাচনী সভা থেকে তিনি সরাসরি তথ্য দিয়ে জানালেন বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলো যখন মাছ উৎপাদনের রেকর্ড করছে তখন মমতার বাংলায় মাছের দাম আকাশ ছোঁয়া। মোদী মনে করিয়ে দিলেন 15 বছর সময় পেয়েও মমতা বাংলাকে মাছ উৎপাদনে স্বনির্ভর করতে পারেননি। यहां बंगाल में मछली की इतनी डिमांड है, लेकिन बंगाल मछली पालन में अब तक आत्मनिर्भर नहीं है। आज भी बंगाल अपनी जरूरत के लिए मछली दूसरे राज्यों से मंगानी पड़ती है। अपने 15 साल के शासन में भी टीएमसी आपको मछली तक नहीं दे पाई है, वो भी बाहर से लानी पड़ रही है। और ये टीएमसी की दुर्नीति का उदाहरण है। কিন্তু কেন বাংলার মাছের বাজারে আগুন? কেন একটা সাধারণ রুই বা কাতলা মাছ কিনতেও মধ্যবিত্তের হাত কাঁপে? এর নেপথ্যে রয়েছে তৃণমূলের ভয়ঙ্কর তোলাবাজি আর সিন্ডিকেট রাজ। ভিন রাজ্য থেকে যখন মাছের ট্রাক বাংলায় ঢোকে তখন সীমানা থেকে শুরু করে আড়ত পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে তৃণমূলের ভাইদের কাটমানি দিতে হয়। এই তোলাবাজির টাকা মেটাতে গিয়ে এই সাধারণ মানুষের পাতে মাছ দুর্মূল্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেবল মুখে মাছের কথা বলেন আর বাঙালির পাত থেকে সেই মাছের ঝোলটুকুও চেটে খেয়ে ফেলছেন তাঁর দলেরই নেতারা। মমতা দাবি করেন বিজেপি শাসিত রাজ্যে নাকি মাছ খাওয়া বারণ, অথচ বাস্তব ঠিক উল্টো। মোদী তথ্য দিয়ে দেখালেন বিহার এবং অসমের মতো বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলো গত 10 বছরে মাছ উৎপাদনে অবিশ্বাস্য উন্নতি করেছে। তারা আজ শুধু নিজেদের চাহিদা মেটাচ্ছে না, অন্য রাজ্যেও মাছ রফতানি করছে। আর বাংলার মৎস্যজীবীরা আজও দারিদ্র্যের অন্ধকারে। साथियों, पिछले 11 वर्ष में ये याद रखिए आप लोग और लोगों को बताइए, पिछले 11 वर्ष में भारत का मछली उत्पादन डबल हुआ है।
भारत का सी फूड एक्सपोर्ट डबल हुआ है, लेकिन बंगाल में टीएमसी सरकार की वजह से जो देश में हुआ, सफलतापूर्वक हुआ, बंगाल में नहीं हुआ। टीएमसी के पापों के कारण नहीं हुआ, जबकि यहां बीजेपी या एनडीए सरकार जहां जहां है, वहां मछली उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। आपके पड़ोस में बिहार भी कभी दूसरे राज्यों से मछली मंगाता था, लेकिन बीजेपी सरकार की नीतियों का नतीजा है कि बिहार में मछली उत्पादन करीब करीब 2 गुना हो गया। आज बिहार बाहर से मछली नहीं मंगवाता, बिहार की मछली बाहर भेजने के लिए वो ताकतवर बन गया है। आज बिहार दूसरे राज्यों को मछली भेजने लगा है। 10 साल पहले असम भी दूसरे राज्यों से फिश इंपोर्ट करता था, मछली मंगवाता था। बीते दशक में वहां भी फिश प्रोडक्शन डबल हुआ, 2 गुना हुआ। आज असम भी अपनी फिश की रिक्वायरमेंट तो पूरी करता है, दूसरे राज्यों को भी फिश एक्सपोर्ट करता है। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন বাংলার মানুষকে গুরুত্বপূর্ণ গ্যারান্টি দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন বিজেপি ক্ষমতায় এলে পশ্চিমবঙ্গকে মাছ উৎপাদনে ভারতের 1 নম্বর রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলা হবে। মৎস্যজীবীদের জন্য কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মতো আধুনিক সুযোগ সুবিধা সরাসরি তাদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছাবে। কোনো তোলাবাজকে দিতে হবে না 1 পয়সাও। देश में फिश प्रोडक्शन, श्रिम्प प्रोडक्शन इतना बढ़ा, तो इसमें बड़ी भूमिका पीएम मत्स्य संपदा स्कीम की है। इस स्कीम में क्योंकि पीएम शब्द आता है, ये अहंकारी टीएमसी को पसंद नहीं है। ये भारत के संविधान का अपमान कर रही है, इसलिए मछुआरों के फायदे की योजना को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। इनको पीएम शब्द से इतनी नफरत है कि पीएम नाम से जुड़ी हर स्कीम का या तो नाम बदल देते हैं या लागू ही नहीं करते हैं। जैसे गरीबों के घर की योजना है पीएम आवास, इसका नाम बदल दिया और उसमें से असली गरीबों, असली हकदारों के नाम ही काट दिए। ऐसे ही आयुष्मान भारत, पीएम जन आरोग्य योजना है, इससे हर गरीब परिवार को 70 वर्ष से ऊपर के हर बुजुर्ग को मुफ्त इलाज मिलता है, क्योंकि इसमें पीएम लिखा हुआ है। तो ये योजना भी टीएमसी वाले बंगाल में लागू नहीं होने देते। मैं मानता हूं कि टीएमसी के बड़े नेताओं को मुझसे नफरत है, लेकिन इस नफरत में इन्होंने पीएम शब्द को भी नहीं छोड़ा। ये तो संविधान का दिया हुआ शब्द है। साथियों, बंगाल का फायदा पीएम से नफरत में नहीं है। पीएम और सीएम दोनों मिलकर काम करें, इसमें लोगों का लाभ है। इसलिए बंगाल में बीजेपी की डबल इंजन सरकार बहुत जरूरी है। डबल इंजन सरकार बंगाल को फिशरीज में, सी फूड में आत्मनिर्भर बनाएगी। साथियों,
मछुआरों को जो पहले कभी नहीं मिलता था, वो बीजेपी सरकार ने दिलाया है। फिर फिशरीज का अलग मंत्रालय बीजेपी ने बनाया। आजादी के इतने दशकों के बाद फिशरमैन परिवार, ब्लू इकोनॉमी, इन सब के लिए दशकों बाद पहली बार हमारी सरकार ने फिशरीज मंत्रालय अलग बनाया, मिनिस्ट्री बनाई। इतना ही नहीं, अलग बजट, रिकॉर्ड बजट दिया है बीजेपी ने मछुआरों के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी बीजेपी ने दिया। मछुआरों के लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा बीजेपी ने दिया। लाखों मछुआरे साथी इसका फायदा उठा चुके हैं। साथियों, बीजेपी की सरकार बनने से केंद्र की हर स्कीम यहां तेजी से लागू होगी। মমতার মাছ মাংসের রাজনীতি আসলে হিন্দুদের ঘাড়ে বন্দুক রেখে তার দুধেল গাই ভোট ব্যাংক বাঁচানোর মরিয়া প্রচেষ্টা। যেভাবে এসএসসি দুর্নীতিতে তিনি যোগ্যদের কাঁধে বন্দুক রেখে অযোগ্যদের বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন, এসআইআরে মতুয়া রাজবংশীদের মতো বৈধ ভোটারদের কাঁধে বন্দুক রেখে অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন, সেভাবেই বিজেপি মাছ মাংস খাওয়া বন্ধ করে দেবে বলে ভয় দেখিয়ে আসলে হিন্দুদের কাঁধে বন্দুক রেখে তার ভোট ব্যাংকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ ভিত্তিহীন, কারণ দেশের একাধিক রাজ্যে বিভিন্ন প্রাণীর মাংস খাওয়ায় আইনি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, কিন্তু মাছ খাওয়ায় কোথাও কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। কিন্তু যে রাজ্যে যে প্রাণীর মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ, এমন প্রাণী হত্যা করে খেলে তো আইনি পদক্ষেপ হবেই। তার সঙ্গে বাঙালি হিন্দুর খাদ্যাভ্যাসের সম্পর্ক কি বলতে পারবেন মাননীয়া? বাংলার হিন্দুরা এবার এই মিথ্যাচারের জবাব ইভিএমে দেবে। মোদির গ্যারান্টি, গরিব খেটে খাওয়া বাঙালির পাতেও ফিরিয়ে আনবে এক টুকরো মাছ। প্রতিবেদনটি ভালো লাগলে লাইক ও সাবস্ক্রাইব করুন। আপনার এলাকার বাজারে আজ কোন মাছের দাম কত আমাদের কমেন্টে জানান। সত্যের পক্ষে থাকতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেল। ব্যুরো রিপোর্ট, মাধ্যম। महाराष्ट्र, मेहनतकश किसानों की भूमि, समृद्ध गांवों की पहचान और विकास की असीम संभावनाओं का प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में आज महाराष्ट्र ग्रामीण विकास, जल प्रबंधन और कृषि के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है। सिंचाई कुओं के निर्माण के लिए स्पष्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू किए गए हैं, जिससे किसानों को स्थायी जल स्रोत मिल सके। राज्य भर में 1,01,000 से अधिक विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं। इन प्रयासों से अब तक 16,15,00,000 से अधिक मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ है। कोकण क्षेत्र में खारे तटीय भूमि के विकास के लिए 286.65 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई है और डिजिटल कृषि को बढ़ावा देते हुए हॉटिनेट पंजीकरण में महाराष्ट्र देश में प्रथम स्थान पर है। जल प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में महाराष्ट्र को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं के लिए 51 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनसे 70,000 मेगावाट क्षमता विकसित होगी। इन परियोजनाओं से लगभग 3.83 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 1.13 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही नदी जोड़ परियोजनाओं और सिंचाई योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त के तहत 1,808 करोड़ रुपए सीधे 90 लाख किसानों के खातों में पहुंचाए गए हैं। राज्य में प्राकृतिक खेती मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों के लिए फार्मा मोबाइल ऐप और डिजिटल किसान आईडी, एग्री स्टैक जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं। कृषि में नई तकनीक लाने के लिए महा एग्री एआई पॉलिसी 2025-2029 लागू की गई है। साथ ही कृषि समृद्धि योजना के अंतर्गत 25,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है और पीएम एफएमई व्यक्तिगत इकाइयों में महाराष्ट्र आज पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र बना रहा है समृद्ध गांव, सुरक्षित जल संसाधन और समृद्ध किसान। नया विश्वास, नया विकास, नया महाराष्ट्र।